Hello, welcome back, students. Today we have a new poem, Felling of the Banyan Tree. Felling of the Banyan Tree, composed by Dilip Chitre. Dilip Chitre, one of the best, one of the finest, one of the smartest poets. So we will read this poem, Felling of the Banyan Tree. So let's begin. But before starting the poem, I must tell you, if you are a new student to this channel, please subscribe my channel and share the link to your friends that they can improve their English. So let's start without wasting our time. So line wise we will read this poem, Felling of the Banyan Tree. So start with the first line. As Dilip Chitre and his family lived in a particular place, there is a banyan tree on that particular place. So this is all about that particular banyan tree. So what happened, we will see line wise. So start with the first line. As my father told the tenants to leave, Dilip Chitre Sahab here said that my father, it means father of Dilip Chitre, Dilip Chitre's father said here, my father told the tenants to leave. Tenants means the renters. Okay, so Dilip Chitre here said that my father told the tenants, my father told the tenants, my father told the renters to leave, to leave. वो कह रहे हैं कि किसी जगह को छोड़ देने के लिए, जिस जगह पे वे लोग रहते हैं उस जगह को छोड़ देने के लिए। दिलीप चित्रे कहते हैं कि मेरे पिताजी रेंटर्स को कहते हैं कि जगह को छोड़ दे। किस जगह को? Who lived on the houses surrounding our houses on the hill. The renters who lived on the houses surrounding our houses on the hill. As Dilip Chitre's family live on a hill, and surrounding his house there are so many houses, and the renters live on in that houses. Okay, so यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कह रहे हैं टेनेंट्स को, रेंटर्स को कि जगह को छोड़ दें। किस कौन सी जगह को? जहाँ दिलीप साहब के उनके फैमिली जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जितने घर हैं जिसमें रेंटर्स रहते हैं उनको कहते हैं कि आप इस जगह को छोड़ देंगे। एंड कहाँ रहते हैं आप देख सकते हैं, ऑन द हिल पे रहते हैं। ठीक है, सो सी द नेक्स्ट, वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश्ड। एज Dilip Chitre's father told the tenants to leave that particular place where his family lived. And after that, what happened? One by one, all the structures of that particular place were demolished. Structures means you can say houses were demolished. Demolished means नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि सारे घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। जब चेतावनी दे दी जाती है कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ छोड़ दो, तो सारे घरों को तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। देन व्हाट हैपेंड? ओनली आवर ओन हाउस रिमेन्ड एंड द ट्रीज। आफ्टर द डिमोलिश ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, व्हाट हैपेंड? व्हाट रिमेन्स? द हाउस ऑफ दिलीप चित्रे's फैमिली रिमेन्ड एंड द ट्री। सारे लोग जब चले जाते हैं तो वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ रहते हैं दिलीप चित्रे के घर और पेड़। कुछ पेड़ रह जाते हैं और दिलीप चित्रे का घर रह जाता है, बाकी लोग चले जाते हैं। एज हिज फादर टोल्ड द टेनेंट्स टू लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश्ड। ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ट्रीज आर sacred, my grandmother used to say. As Dilip Chitre said here that my grandmother used to say that trees are sacred. Trees are sacred. Sacred means pavitra. Okay, sacred means pavitra. So Dilip Chitre here said that my grandmother used to say that trees are sacred, कि पेड़ जो होते हैं वो काफ़ी पवित्र होते हैं। ठीक है, मेरी ग्रैंड माँ जो है मुझसे कहा करती थी। Felling them is a crime, but he massacred them all. Felling them is a crime. Felling them means cutting the trees is a crime.
cutting the trees is crime and what happened? He massacred them all. ये जानते हुए भी सारे पेड़ को कट कर दिया गया है, सारे पेड़ को नष्ट कर दिया गया है। यहाँ मैसेकर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी संख्या में चीज़ों को नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना, नरसंहार कर देना। सो ऑल द ट्रीज अराउंड हिज हाउसेस वर मैसेकर्ड। ओके, सभी पेड़ों को काट दिया जाता है। द सेवगा, द अडम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन। These are the trees, these are the name of different kinds of trees. Saga, Adambar, the neem were all cut down. ये जो पेड़ है सौगा, अडम्बर और नीम जो है, सारे पेड़ को, इस तरह के पेड़ को काट दिया जाता है, सभी पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है। But the huge banyan tree stood like a problem. But the problem was that particular banyan tree that stood like a problem. Okay, तो एक बहुत बड़ा बनियान ट्री था वहाँ पे, वो एक समस्या बनी हुई थी कि इन पेड़ों को कैसे हटाया जाए, इन पेड़ों को कैसे हटाया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या थी वो बनियान ट्री, ह्यूज बनियान ट्री। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा जो बनियान ट्री था वो उनके लिए समस्या हो गई थी। Whose roots lay deeper than our lives. यहाँ कंपेयर किया गया है रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर बनियन ट्री एंड आवर लाइफ्स। हमारे लाइफ से उस बनियन ट्री के रूट को काफ़ी कंपेयर किया गया है, जो बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया है कि हमारे जीवन और बनियन का ट्री जो है, वो बनियन का जो रूट्स है वो हमारे जीवन से काफ़ी गहरा है, वो बहुत पुराना है, बहुत दिनों से वहाँ पे है। एक तरह से कहा जाए दिलीप चित्रे इज शोइंग हियर हेरिटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस and that the banyan tree is a symbol of heritage. So he said about that banyan tree. Okay, see the next. The banyan tree was 3 times as tall as our house. It means to say that the banyan tree was huge, a huge tree, a huge banyan tree, and that banyan tree is 3 times as tall as our house. It means हमारा जो घर है उससे 3 गुना बड़ा हमारा वो बनियन ट्री। इट मीन्स वो बहुत बड़ा बनियन ट्री था, वो बहुत बड़ा बनियन ट्री था। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो कितना बड़ा था। Its trunk had a circumference of 50 feet. Circumference, you know, वो उसकी जो गोलाई थी, उसकी जो लेंथ थी, वो कितना मापा गया? 50 फीट। इट मीन्स कि वो बहुत पुराना था, बहुत बड़ा था। वो हेरिटेज को दर्शाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस के जो हेरिटेज है, काफ़ी दिनों से वो पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे, उस हेरिटेज को वहाँ पे दर्शाता है कि उसका जो सर्कमफेरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। इट मीन्स कि उसका लेंथ जो है 50 फीट है, जो कि बहुत दिनों का वो महसूस होता है। ओके, इट्स अ स्क्रैगी एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड। और उसका जो एरियल रूट है, एरियल रूट जब आप बनियन ट्री को देखेंगे, बरगद के पेड़ को देखेंगे, तो उसमें एरियल रूट होते हैं। नीचे तो रूट होते ही हैं जो ज़मीन में जाते हैं, लेकिन बनियन ट्री के ऊपर से भी रूट आते हैं नीचे ज़मीन की ओर। तो वो कह रहे हैं कि वो जो बनियन ट्री है, एरियल रूट जो है, ऊपर से जो रूट आए हैं, जो जड़ आए हैं, वो कहाँ आ जा रहे हैं? फेल टू द ग्राउंड। वो ज़मीन पे आके फिर से गाड़ दिए जाते हैं, अपने आप को ज़मीन से जोड़ देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर बनियन ट्री। सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। फ्रॉम 30 feet or more, so first they cut the branches. Mean to say that the banyan tree is huge, so how can we cut that particular banyan tree? First they cut the branches. To fell that huge banyan tree, we have to cut the branches. First of all, we have to cut the branches. पहले उसके branches को हमने काट दिया। चूँकि बहुत बड़ा बनियन ट्री है, उसको कैसे काटा जाए, तो सबसे पहले branches को हमने काटा। Okay, see, sewing them off for 7 days and the heap was huge. Sewing का मतलब उसको
कट करना होता है, आरी से काटना इत्यादि, ठीक है, आरी से काटना। तो उसे काटने में काफ़ी दिन लग गए। यू कैन सी हियर सेविंग देम ऑफ फॉर 7 days। इट टुक 7 days टू कट दोज ब्रांचेस एंड द हिप वॉज ह्यूज। और जब ब्रांचेस को काटा गया तो उसके जो हिप थे, उसके जो टुकड़े थे वो काफ़ी बड़े लग रहे थे। दैट शोज हाउ बिग दैट पर्टिकुलर बनियन ट्री वॉज, and that shows the heritage of that particular place also, and shows the heritage of the Dilip Chitra's families and the tenants of that particular place. Okay, see, insects and birds began to leave the tree, and as that huge banyan tree was being cut, the insects and the birds that live and that on that particular banyan tree, they all began to leave the tree, they all began to leave the tree। यहाँ बहुत अच्छा संकेत भी एक तरह से कि कैसे जब बनियन ट्रीज को काट दिया जाता है तो उस पे जो इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे जीव रहते थे उस पेड़ पे, एंड द बर्ड्स, जो चिड़ियाँ रहती थी, वो भी उस जगह से छोड़ करके जाने लगे, उस जगह को छोड़ दिया। So this this activity shows the heritage of that particular place or heritage of the banyan tree। वो कितना वर्षों का था, वो बहुत ही ह्यूज था। जब उसके ब्रांचेस को काटा गया तो बहुत सारा मलबा के रूप में, बहुत सारा कचरा के रूप में बहुत बड़ा ढेर बन गया। सो ये बताता है इस स्टांजा में। सो व्हाट हैपेंस एंड देन दे कम टू इट्स मैसिव ट्रंक। जैसे उसके ब्रांचेस को काटा गया, उसके सर्कमफेरेंस का पता लगाया गया, तो फिर अब आता है मैसिव ट्रंक, जो बीच वाला भाग है पेड़ का, उसको काटने की बारी। देन दे कम, जो लोग थे काटने वाले, वो अब आते हैं उसके मेन ट्रंक को, यानी बीच का जो पेड़ का हिस्सा होता है उसको काटने के लिए। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। मैसिव ट्रंक यानी बीच का जो हिस्सा होता पेड़ का वो बहुत बड़ा था। 50 men with axes chopped and chopped. There are 50 men. There are 50 men there to chop that particular banyan tree. That is a huge banyan tree. और उसे काटने के लिए लगभग 50 आदमी लगे। 50 आदमी लगे, सभी अपने औजार के साथ। एक्सेस का मतलब होता है वो कुल्हाड़ी से पेड़ को जो काटा जाता है वो उसके साथ आए और उसे चॉप करने लगे, उसे काटने लगे। कट कट कट, चॉप चॉप चॉप, सारे लोग लग गए उसे काटने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा बनियान ट्री जिसे काटने के लिए लगभग 50 लोगों की जरूरत पड़ी। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग ऑफ 200 ईयर्स। द ग्रेट बनियान ट्री रिवील्ड इट्स रिंग ऑफ 200 ईयर्स। जब उसके ट्रंक को काटा जाने लगा तो उसके जो रिंग निकल रहे थे, उसके जो परत निकल रहे थे, तो उससे पता चल रहा था कि ये जो बनियन ट्री है दिस इज़ 200 ईयर्स ओल्ड, यानी ये लगभग 200 साल पुराना बनियन ट्री है जिसको कि अब काट दिया जा रहा है, जिसको अब चॉप कर दिया जा रहा है। सो ये हेरिटेज कितना पुराना है उस ट्री के साथ, वो यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है दिलीप चित्रे के द्वारा। ये बहुत ही रोचक कविता। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं। वी वॉच in terror and fascination this slaughter। और उस एक्टिविटी को जब काटा जाने लगा, तो उस एक्टिविटी को जब काटा गया तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या करते थे, इट मीन्स दिलीप चित्रे साहब एंड ऑल द चिल्ड्रेन, वो क्या कर रहे थे, काफ़ी टेरर के साथ, उनमें डर भी था, देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक भी लग रहे थे और डर भी था, देखने की इच्छा भी हो रही थी और काफ़ी डर भी था। तो ऐसे उनके अंदर जो फीलिंग थी, उस पेड़ को जब काटा जा रहा था तो उनके अंदर ऐसा फीलिंग आ रहा था। एज अ रॉ मैथोलॉजी रिवील टू अस इट्स एज। तो जब काटा गया, उसके जो रिंग्स थे, उसके जो मैथोलॉजी थे, उससे पता चल रहा था कि वो कितना पुराना है, कितना उम्र हो गया है उस पेड़ का। Soon afterward, we left Baroda for Mumbai. And after that, what happened? Dilip Chitre and his family left Baroda. वो लोग बड़ौदा में रहते थे,
और बड़ौदा से अब वो कहाँ चले गए, वे लोग चले गए अब बॉम्बे। वे लोग अब बॉम्बे चले गए, पहले बड़ौदा में रहते थे। आफ्टर कटिंग दैट पर्टिकुलर ह्यूज बनियान ट्री दे लेफ्ट बड़ौदा एंड वेंट बॉम्बे वेयर देर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन। अब देखिए यहाँ बड़ौदा और बेंगलोर, बड़ौदा और मुंबई का कंपैरिजन थोड़ा सा किया गया है पेड़ के माध्यम से और लोगों के जो ह्यूमन का जो ड्रीम है उसके साथ, कि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ तो बहुत सारे पेड़ था एंड वन ऑफ दोज ट्रीज इज अ ह्यूज बनियान ट्री एंड दैट वाज कट। वो एक बहुत बड़ा बनियान ट्री भी वहाँ है जिसको कि अब काट दिया गया, ठीक है। लेकिन जब बॉम्बे गए तो वहाँ कोई पेड़ नहीं था। वेयर देर आर नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं था एक्सेप्ट द वन, सिर्फ एक चीज़ थी। वो क्या थी यहाँ बड़ी अच्छे तरीके से बताया गया, विच ग्रोज एंड सीड इन वंस ड्रीम इट्स एरियल रूट लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। वन थिंग दिलीप चित्रे साव इन बॉम्बे कि जो उसकी बढ़ोतरी हो रही थी, जो लोगों की ड्रीम है, जो लोगों की जो ड्रीम है उस काफ़ी तेज़ी से उस पे लोग आकर्षित हो रहे हैं अपने ड्रीम की ओर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बिजनेस हो गया, पैसा हो गया और इस तरह की चीज़ें जो है उसके पीछे लोग भाग रहे थे। वहाँ कोई पेड़ नहीं थे, लेकिन लोगों का सपना था कि बॉम्बे में जा कर के काम करना है, बहुत बड़ा स्टार कलाकार है या बहुत पैसे कमाना है। इन सारी चीज़ों को यहाँ रिवील कर रहे हैं दिलीप चित्रे साहब, ओके। विच ग्रोज एंड सीड इन वन स्ट्रीम इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक। मीन्स टू से कि वहाँ जो लोगों की जो ड्रीम है वो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के ड्रीम, वहाँ के जो सराउंडिंग प्लेसेस थे उससे काफ़ी अलग थे, अंतर थे बड़ौदा में, लेकिन बॉम्बे में तो काफ़ी अलग है। तो दिस इज़ द पोएम फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, अ वेरी गुड पोएम composed by Dilip Chitre Saab, and this revealed the heritage of that particular place of Baroda where Dilip Chitre and his family lived. And after that, having chopped that huge banyan tree and all the trees, they left Baroda and went Bombay. And what happened in Bombay? They saw there are no trees, and the one thing Dilip Chitre saw, that dream of people, they run after money, they run after all those things like फेमस होना, कुछ अलग करना, पैसों के पीछे भागना। तो यहाँ बॉम्बे में ये सब चीज़ें देखी गई, जबकि बड़ौदा में ये सब चीज़ें नहीं थी। सो कविता कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।